Hello, everyone. A very good morning. Thanks for joining. Hope you can see me, and hope I'm audible as well. Yes, no. Can you see me, guys? Can you hear me? Okay. Thanks. Thanks for the thumbs up, Shubham. So thanks for joining again, and I think बाकी लोग भी धीरे-धीरे join करेंगे. So let's get started. So first of all, thank you so much for taking the first step uh, for learning AI. I have many friends. Few people are from the last batches, workshops, and people I know. So it's good to see everyone. Hey Vinny, thanks for joining. We are just starting, and बाकी लोग भी बीच में आते रहेंगे. तो I think कि it's good because we only have 1 hour with us. तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं एजेंडा सेट कर दूं कि ये क्या कैसा कॉल रहने वाला है. इट्स नॉट अ वर्कशॉप. इट्स नॉट समथिंग जहाँ पे हम लोग कोई अलग से पढ़ाई करेंगे, राइट. आई वुड रादर से कि कोशिश हमारी यही है कि हम लोग चिट चैट कर सकें, कैजुअल बात कर सकें, है ना, और समझ सकें कि कैसे चीज़ें जो हैं चीज़ चल रही हैं, चीज़ें आपके आसपास अगल-बगल. एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो एआई को लेकर, आप प्लीज़ पूछिए. एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दे सकूँ उसका. और जो नहीं दे पाऊँगा मैं, वो मेरे लिए एक एक्सरसाइज होगी. आई विल बी रिसर्चिंग एंड देन आई विल रिवर्ट यू बैक. तो बिफोर यू गेट स्टार्टेड, बिकॉज़ अभी हमारे पास अभी कुछ कम लोग ही हैं, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ ताकि बाकी लोगों को पता हो, क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी, इट्स नॉट समथिंग जहाँ पे ये वन वे होगा. मैं चाहूँगा कि आप भी मुझसे बात करें और ये इंटरैक्टिव अगर हो तो बहुत अच्छा होगा. So just few lines, your name, आप क्या करते हैं, and what are you expecting from this? What is AI for you? So maybe to get started, Shubham, if you may ask, start. Yeah. Sure. So my name is Subham Krishnan. I'm currently working as a manager in Sri Chaitanya. I'm handling all the exams of the Olympiad, Hmm. like IIT, JEE, NEET, and other Olympiad exams like NSC, JS, BBC. So yeah, that's all. That's And great. I Thanks, want thanks, to Shubham. yeah, and I want to Mhm. switch to a data field because Mhm. after working in this company I realized like I'm more aligned towards data and like I Mhm. enjoy working with the Excel and Power BI and Yeah. SQL and everything. Sure, that's great to know, Shubham. I already know you, but yeah, I wanted everyone to know each other. So thanks again, Shubham. And you are doing great. Keep it up. And I know you are doing hard work. I have reviewed your resume as well. It was great. So best wishes for you for the future time which is coming, especially on the job front. Yeah, thank you. Who'll like to go next? Maybe Laksh? Hello, I'm audible. Yep, you are. So, hello, sir. How are you doing? I'm doing well. Thank you so much. Okay. So, hello, everyone. My name is Lakshya. I have currently ended my first year. I am pursuing business analytics from Kyawamangalam University. I'm originally from Lucknow, and the main purpose of joining me this community would be to having a good career path in my early career age, to understand and be more analytically better in my field. Yeah. That's great to know. Thank you so much, Laksh. So I also know you personally, so it's good that we are again meeting. So all the best for you because you are still a student. So there are a lot of, I would say, years. Almost 2 years is with you. But yeah, I think those 2 years should be fruitful. So please keep on learning. Thanks Sure, again. sir. Hardik, would you like to go next? Am I audible? Yes, you are. Um, my name is Hardik. I'm preparing for a government examination and just want to learn AI, so I'm here. Mhm. That's great to know, Hardik. So what are you studying? I have done MSc in mathematics last Okay, that's good. year. Hmm. Okay, that's good to know.
So well, we have folks from like various background, students and working professionals. It's good to see again. Thanks, Hardik. Looking forward to see you in more sessions. And let's get started to know what's AI and other things which you have already in your mind. Sure. Thanks. Vineet, would you like to go? Hello, Vineet. Can you hear me? You are on mute. If you can unmute yourself and introduce yourself, just a little. Hi, sir. Yeah, you're audible. Thank you, sir, for giving me. Currently, I am doing a data science course, Mm-hmm. uh, and now I'm exploring AI. Okay. And this is the current time it's going ML. Mm-hmm. So, are you a student or working professional? No, sir, I'm a student. Okay. And what degree are you pursuing? Uh, Arts, sir, in arts, bachelor In of art. arts, and Okay. MA. Okay. So you are doing MA. Okay. That's great to know. I've done. Okay. You have already done, and now you are learning machine learning. Yes, sir. Okay. That's great to know. It's good that you have degrees, and again you're upskilling yourself. I mean, I can resonate totally with me as well. So thanks, Vineet. Okay. Weber, would you like to go? Just introduce yourself, your name, what you do. Yeah, hi. So I'm Vaibhav Singh. I'm currently working as an AI engineer here in a fintech company in Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. And yeah, pretty much. And as for my qualification, I did my bachelor's from SRMU Lucknow, and then my master's from APU Kuala Lumpur. That's great. Thank you. Thank you so much, Vaibhav. Shubham, would you like to go next? Just introduce yourself just a little bit and what you do and what is AI according to you. What are your expectations? You're on mute, Shubham. If you can unmute and tell us. Yeah, can you repeat your question, please, once? I was asking Shubham Gaikwad. Sorry, Shubham. Oh, Yeah, we have two Shubhams now. I'm audible. Yeah, you are Shubham. So, firstly, good morning, all of you. Morning. So, my name is Shubham Gaikwad. So, I am from Chhatrapati Sambhajinagar. So, I am currently working in Optum as a executive coder. That's good to know. And anything about AI which you would like to explore more? Anything which you think would be beneficial for you? Yes, obviously. So, AI is we are upgraded in our pipeline or something daily work. Okay, We so exclude them. mostly in your professional area, you would like to know, Yeah, correct? yeah, Okay, that's correct. great to know. Sure, we'll explore that. So I think we can get started and let other folks join in. And let me share my screen and let's get started. And so that we have an agenda, we can see the screen and start accordingly. Just give a moment. Let me know once you see the screen. Hope you can. Yes. Okay. So we are at episode 1 of Sunday with Shashank, and in here we'll be talking about AI because I think AI is for everyone. What it is, how it works, and how to stay ahead. So I'll try to explain in very plain English in layman terms. So please bear with me, and if you feel you need
more explanation, please feel free to ask. Okay, and it will be every Sunday between 10 a.m. to 11 a.m. just like today. Today is our first, so I would like you all to always meet weekly, because it's a kind of a weekly meet with the community where we can discuss. We can just be, uh, you know, uh, we can be child, I would say, because we can have many questions, but we often get scared or hesitate. But that's the whole point, because I also do. But I thought to give it a try to help you and also learn, right? So let's get started. To just, if you don't know about me, and people who know already know, it would be great. So I'm Shashank Kashyap, and I'm working as a senior lead business analyst with a financial service company. I have around 10 years of experience now, and I have done my master's in machine learning and AI, and I also was invited into IIM for the guest lectures on Power BI, Gen AI, etc. And I'm also a mentor at Flexing Data. And I worked with companies like TCS. I started with that, and then I got an opportunity to work with EY as a data analyst, and here I am. So it's a 10 years, and obviously it feels unreal, but it was a time which where there was a struggle and there was success, and still I'm still in the process. So what's the first word that pops into your head when you hear AI? Okay, so I would like you to scan this QR. Please open your mobile. Obviously, you have one. So just scan this. It will take you to an URL. Enter this code which is mentioned in here so that I can see the answers. Okay. So just let me know once you do. To see the answers, let me bring this screen. तो क्या कह रहा है वो स्क्रीन? वेटिंग इन द लॉबी, प्लीज लेट मी नो. सब लोग एक बार आ गए हैं तो please let me know if you can scan. Did you scan or Yeah, were not able already to? in. Okay. एक बार स्कैन आप फिर कर सकते हैं इफ यू हैव नॉट येट. जल्दी से स्कैन कर लीजिए, फिर मैं वहां पर आऊंगा. कोई बच तो नहीं गया? सभी लोग आ गए? स्कैन कर लिया सबने? ठीक है, तो सभी लोग प्लीज आंसर करिए इसको आपके मोबाइल पर ही, एंड आई थिंक इट शुड अपीयर इन हियर जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे. तो सभी ने कोड डाल दिया था, राइट? कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज बताइए. सेम फोन? ओके, आप फोन पर ही हैं और फोन से कर सकते हैं बिल्कुल. लिंक पे जाना है बस आपको. तो आई थिंक अगर नहीं है तो मैं लिंक भी भेज दे रहा हूँ आपको, सो दैट यू हैव, क्योंकि फोन पर हैं तो आई थिंक इट कैन बी. मैंने लिंक भेजा चैट पर, गूगल मीट चैट पर, तो वहां एक बार जाइए. वैसे यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ था, लिंक भेज दिया मैंने. और कोड डालना है ये S2RZWF. कौन कर पाया है? ठीक है, इनपुट्स आने लगे हैं. अपॉर्चुनिटीज, दैट्स ग्रेट टू नो. एंड इट्स टोटली अनोनिमस, क्योंकि मैंने आपसे नाम नहीं पूछा है. बस आप लिंक पर गए हैं और आपने अपनी बिल की बात यहाँ पर कही है.
तो लिंक पर जाइए, कोड डालिए और आंसर दीजिए। गूगल मीट के चैट बॉक्स में लिंक पर जाएं एंड कोड डालें S2RZWF एंड दैट्स इट। फेक अभी आंसर आया है। आई वुड लाइक कि सभी लोग कुछ ना कुछ कहें। ओके, डेटा, दैट्स ग्रेट। सभी लोग प्लीज करें, जितने लोग हैं। थोड़ा फास्ट। कोई डिफिकल्टी तो प्लीज बताइए जो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम इश्यूज और एनीथिंग। सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट्स गुड। एक और रिस्पॉन्स मैं देखना चाहूंगा। टफ, ओके, इंडीड, बट हम उसको इजी बनाएंगे, टफ नहीं बनाएंगे। ओके, एक लंबा आंसर है। व्हेन द थिंग्स आर वेरी इजी फॉर अस, दैट इज बिकॉज ऑफ एआई। ठीक है, इंडीड। ओके, सो वी हैव द रिस्पॉन्सेज, सो दैट्स ग्रेट। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं जो सामने है ना, इसको हम क्या कहते हैं, किसी को पता है? ये जो हो रहा है, जो वर्ड्स पॉपअप हो रहे हैं, जो आप इनपुट भेज रहे हैं, इस वर्ड को क्या कहते हैं? क्योंकि यही शुरुआत है जानने के लिए। आई कैन हेल्प, इट्स कॉल्ड वर्ड क्लाउड। ठीक है, तो वर्ड क्लाउड, अगर आपने ये ऐप कहीं पे और फील किया हो तो इसका नाम था मेंटीमीटर। ओके, सो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम मेंटीमीटर एंड ये मैंने खुद का ऐप बनाया है ऑन फ्लेक्सिंग डेटा एंड ऑब्वियसली आई हैव मेड इट यूजिंग क्लॉड। सो आप समझ सकते हैं क्लॉड कितना पावरफुल है कि वो इस तरह का ऐप बना सकता है और लाइव जो है ये चीज़ों को दिखा सकता है। तो ये टेस्टिंग भी था, ये बीटा फेज था मेरा। सो आई वॉज लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट दिस कि ये कैसा बिहेव करेगा, बट आई थिंक इट्स बिहेविंग गुड। हाँ, कुछ दो चार चीज़ें और जो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ मे बी, बट फॉर ए स्टार्टर आई वुड से आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, so this is the first kind of an application जो आप देख रहे हैं which I have made. Obviously I don't know how to code because I'm not a developer, but using Claude and my skill set I have given the instructions and here we go. ठीक है, ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं एंड आ जाते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में। तो एआई, जैसे आपको सबके मन में कुछ ना कुछ आया, कोई इसका रॉन्ग आंसर्स नहीं थे, राइट? और एआई असल में क्या है ये हम समझेंगे और आपके जो भी थॉट्स हैं वो भी हम समझेंगे कि क्यों है और क्या होने चाहिए। और टफ जिन्होंने भी कहा, मुझे नहीं पता किसने कहा, बट हाँ, टफ इन द सेंस जब भी आप कोई चीज़ नहीं जान पाते हैं, राइट, या आप नहीं समझ पाते हैं तो वो टफ ही लगेगा। और जब आप चीज़ों को जानते हैं और धीरे धीरे आप उसमें जाने लगते हैं तो चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। सो इंडीड इट कैन बी टफ फॉर द स्टार्टर्स, बट इट डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप सीधा ऐप बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी टफ ना, वो ईजी नहीं हो सकता, वरना सब लोग बनाने लगेंगे, राइट? बट अब जेन एआई और एआई जो भी चीज़ें हैं जो भी हम कवर करेंगे, उसने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, कि अब बिना कोडिंग नॉलेज के अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपको बोलना आता है, इफ यू नो हाउ टू डू द गुड प्रॉम्प्ट्स, राइट गुड प्रॉम्प्ट्स, जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, वो भी एक फील्ड है जो अब इवॉल्व हो रही है। तो आई थिंक यू कैन बी गुड एट एआई एंड एआई टफ नहीं, ईजी लगेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लॉड के बारे में विनीत हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लॉड ही है जो सबसे मोस्ट पावरफुल टूल है इस आज के दौर में, है ना? चैट जीपीटी अब मैं कहूँगा कि अब पुराना हो गया है मेरे हिसाब से, है ना? इट इज स्टिल गुड इन राइटिंग टर्म्स, बट अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो क्लॉड इज द बेस्ट। और एक और चीज़, जो पीपीटी देख रहे हैं आप, ये भी क्लॉड से बना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ऑब्वियसली इतनी मेहनत मैं खुद से अगर करने बैठता तो पहले तो बहुत टाइम लगता और रिसर्च वगैरह बहुत होता, बट मैंने रिसर्च की, जी हाँ, और लेकिन प्रॉम्प्ट लिख के मैंने क्लॉड से पीपीटी बनवाई है ये। ठीक है, इंडीड यू कैन सी कि कितने अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन है और कितने अच्छे आइकन्स वगैरह हैं। तो हम सब धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन में हम सब नहीं सीखेंगे, इसीलिए मैंने एवरी संडे 10 AM to 11 AM रखा है। हर संडे हम कुछ ना कुछ एक बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
So hope it answers, Vineet. तो where are we are going today? What is AI? समझ रहे हैं? What is generative AI? There is a difference. ठीक है? How does it actually work? AI agents and agentic AI. आप देख रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं? हर चीज में AI है, बट सब कुछ अलग है एक दूसरे से, और सबका मतलब भी अलग है। ठीक है, लेकिन इंटरचेंजेबली हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, बट जो नहीं बोलना चाहिए। यही सब चीजें हैं जो बेसिक लेवल पे जब क्लियर होंगी, तभी आप जब बढ़ते हो आगे के लेवल पे, तो आपको और अच्छा लगता है। ठीक है। विल AI टेक माई जॉब? सबसे हॉट क्वेश्चन है इंडस्ट्री का, सभी के दिल में रहता है, मेरे में भी मन में था, मैं कहूंगा, है कहूंगा, बट धीरे धीरे उसका भी आंसर मैं दूंगा। ठीक है। एंड हाउ टू लर्न इट, है ना, और फ्री टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी आपको पता ही है, क्लॉड भी फ्री वर्जन उसका है, राइट। तो धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि जब हम एआई बोलते हैं, ठीक है, और जब जनरेटिव एआई बोलते हैं, तो क्या क्या मतलब आपको समझ में आता है इससे, ताकि मैं उसके बाद आपको आंसर करूं। एंड फील फ्री, मुझे पता है कि अगर आप गलत भी बोलते हैं, इट्स फाइन, बिकॉज वी आर हियर टू टू रिसर्च एंड लर्न। ठीक है। मैंने कुछ रिसर्च किया है, इसलिए मुझे आता है, मुझे भी पता नहीं था। ठीक है। क्योंकि इतना टाइम हो गया मुझे करते करते, इसलिए मैंने ये सीखा है। तो ऑब्वियसली इफ इट्स योर फर्स्ट डे, या आप अभी समझ ही रहे हैं, तो इट कैन बी रॉन्ग, बट आई वुड लाइक टू नो कि आपके परसेप्शन क्या है, आप क्या समझते हैं इससे, ताकि मैं आंसर कर सकूं। सो एनीवन, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताइए, एआई और जनरेटिव एआई या जेन एआई जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों में क्या फर्क आपको समझ में आता है? Shall I? श्योर, प्लीज गो अहेड। Yeah, if I talk about the generative AI, then we can say like AI is a very broader term, right? So generative AI can be a subset of it, and the part of AI which creates anything, like anything. It can be नाइस, visual or any app thing. ऑसम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एंड कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ जेन एआई? पहले आप दे दो, फिर एआई भी हम बात करते हैं। Maybe Claude Code. ठीक है। चैट It जीपीटी, helps. राइट, ChatGPT, है types ना, of Gen AI, ग्रॉक, Nano है ना, Banana. नैनो बनाना, राइट। तो सब जन एआई है। तो Exactly. जनरेटिव वर्ड यहाँ पे, थैंक यू सो मच, है ना, ये बताने के लिए। तो जिनको नहीं पता था वो देखिए, लक्ष्य ने बिल्कुल सही बताया यहाँ पे। तो जनरेटिव, जनरेटिव से आपको हम पकड़ना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप याद करें, आप सिर्फ सुने नहीं, आप इसको याद करें कि दोबारा से अगर कोई पूछे तो वापस आपको स्लाइड पे या रिकॉर्डिंग ना देखनी पड़े। ठीक है। जनरेटिव मतलब क्या होता है? जनरेट करना। क्या जनरेट करना है? कोई भी कंटेंट हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वॉइस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। जो भी हम करते हैं चैट जीपीटी पे, क्लाउड पे, ग्रॉक पे, जितने भी आप एलएलएम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, सभी वो जेन एआई टूल्स ही होती हैं। ठीक है। तो जो भी चीज जनरेट करे वो जनरेटिव एआई है। एआई पे अगर आए, एआई का कोई एग्जांपल बताइए। इट कैन बी लिटिल ट्रिकी। एआई के एग्जांपल, यस, इट्स अ सबसेट, जनरेटिव एआई इज अ सबसेट। एआई बहुत बड़ा टर्म है, जनरेटिव एआई उसका छोटा सा पार्ट है। वो छोटा पार्ट ही इतना बड़ा है कि हम लोग अब उसके ऊपर सारे एप्स और हर चीज करने वाले हैं। एआई का कोई भी छोटा एग्जांपल दें। चलिए उस पर भी हम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई एआई, वाई नाउ? Hello, sir. हाँ, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। Hello. यस यस, योर ऑडिबल। Sir, AI predicts and decides, we can say, एआई प्रिडिक्ट्स, ओके, ठीक and है। decides. I'll not कमेंट। ठीक है, आई टेक द Okay. इनपुट्स। बट Sure. अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि हम किस चीज को किस बकेट में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि एआई बहुत बड़ा टर्म है ना। उस और जनरेटिव एआई सबसेट है, जैसे बताया। एआई और जेन एआई के बीच में बहुत लोग आते हैं, तो वहां पे कहीं ये जा रहा है आपका जो आंसर था, बट इट्स गुड। हाँ, वो भी सही है, क्योंकि एआई ब्रॉडर टर्म है, तो उसके अंदर तो वो है ही जो आप कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वाई एआई, वाई नाउ? तो पहली बात तो, नाउ अभी नहीं है। ठीक है, ये पहले भी था। इट जस्ट दैट कि जब जेन एआई हुआ, यानी चैट जीपीटी और ये सब चीजें जब टूल्स आई, तब चीजें क्या हो गई, सिर्फ टेक के लिए नहीं रही, बल्कि सबके लिए हो गई। करेक्ट, सभी लोग एग्री करेंगे इस बात से। अगर चैट जीपीटी नहीं आता, या प्लीज 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 टेल। हाँ, कई कुछ कह रहे थे, सॉरी। तो वाई नाउ में मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इंजीनियर्स थे, जैसे मैं हूँ, या जो भी इंजीनियर्स थे, गूगल की बात कर लें, बड़ी कंपनीज की बात कर लें, वहां पे हमेशा था, लेकिन वो टेक के लिए ही था। तो नॉर्मल आदमी या जो नॉन कोडर है, वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, है ना। इसलिए ऐसा लगा कि अभी आ गया, बट ऐसा नहीं था। एआई बहुत सालों से है, ट्रस्ट मी।
और अभी हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि आपके मन में सवाल हो सकता है ये पहले कब था, राइट? तो बिकॉज इट स्टॉप बीइंग टेक फॉर इंजीनियर्स एंड बिकेम स्किल फॉर एवरीवन, है ना? सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे। जो नहीं करेंगे प्लीज बताइए बीच में, मुझे आप टोक सकते हैं। ओके, थ्री थिंग्स चेंज्ड। क्या चेंज हुआ वही हम देखेंगे। इट गॉट इजी, ऑब्वियसली कोई भी चैट जीपीटी अब ओपन कर सकता है। कोई किसी को बीटेक डिग्री नहीं चाहिए कि आप पहले बीटेक करके और फिर आप चैट जीपीटी चलाओगे, राइट? कोई भी, लिटरली कोई भी चैट जीपीटी को ओपन कर सकता है, कुछ भी टाइप कर सकता है, टाइप नहीं करना है तो वॉइस से टाइप कर सकता है। और ये सारे फीचर्स, है ना, जेन एआई ही है। क्योंकि वॉइस टाइप भी जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, आपका जनरेट कर रहा है टेक्स्ट फ्रॉम योर वॉइस। तो हर चीज उसके अंदर जेन एआई है। जो भी वो रिप्लाई देता है वो भी जेन एआई है, वो भी जनरेट कर रहा है। इट कैन बी इमेज, इट कैन बी टेक्स्ट। मोस्टली टेक्स्ट के लिए लोग यूज करते हैं, बट इमेज के लिए भी बेस्ट है चैट जीपीटी। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज चैट जीपीटी पे जाएं और बोलें कि जनरेट एन इमेज फॉर मी, जो भी आप बोलना चाहें। जैसे मैंने पोस्टर बनाया था, अगर आपने पोस्टर देखा हो संडे विद शशांक का, राइट, तो वो जेन एआई से ही बनाया। चैट जीपीटी को मैंने अपनी फोटो दी थी ओरिजिनल, और कहा था कि ये कॉन्टेक्स्ट है, संडे विद शशांक नाम है, 10 AM to 11 AM, एंड दैट्स इट, उसने बना दिया। इट्स ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट। तो इस पे भी बहुत ज्यादा हम बात करेंगे धीरे धीरे बाकी संडेज को पे, ठीक है? इट्स एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब कहाँ कहाँ है? ऑब्वियसली फोन पे तो आपका चैट जीपीटी है, ठीक है, बट बैंक में भी है। बैंक में कहाँ है, कोई बताएगा? बैंक में एआई कहाँ है? Like, I don't know the exact specific term, but the श्योर। where the basically bank analyze whether the customer is eligible for the loan or not. नाइस। लोन के लिए हो सकता है, और किसके लिए हो सकता है? फ्रॉड डिटेक्शन, है कि नहीं? जब बड़ा अमाउंट आपने कभी कोशिश की होगी निकालने की, किसी यूएसडी डॉलर्स में या कहीं भी, तो आपके पास कभी कॉल आया होगा। आया किसी के जी। पास? कभी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए आया किसी के पास? हाँ। बिल्कुल। क्यों क्यों आया था आपके पास? क्या आप कोई कोई और ट्रांजैक्शन कर रहा था या आप ही कर रहे थे? नहीं, मैं कर रहा था पर अमाउंट ज्यादा था तो कॉल आया था। बट हमेशा तो नहीं आता। हाँ, तो क्यों आया था ये पूछ रहा हूँ। मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा था, मतलब अगर मैं 50 Unusual 60 pattern. की, हाँ। हाँ करेक्ट, अनयूजुअल पैटर्न। बहुत ज्यादा कहते किसको है, राइट? किसी के लिए 1 करोड़ बहुत ज्यादा होगा, किसी के लिए शायद 5,000 भी ज्यादा हो, राइट? तो अक्सर आपके अराउंड जो अमाउंट आप निकालते हो या आप डेबिट कराते हो, लेट्स से कि कोई एक एवरेज इंडियन है, उसका मैक्सिमम जो अमाउंट डेबिट हुआ है वो लेट्स से 1 लाख हुआ है, लेकिन अचानक से 15 लाख हो रहा है, क्योंकि वो कुछ और बड़ा काम कर रहा है, मे बी कार ले रहा है, मे बी घर ले रहा है, डाउन पेमेंट कर रहा है, जो भी है। तो ये सस्पिशियस थोड़ा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न से हट कर है, वो आउटलायर है। आउटलायर समझ रहे हैं कि ये आपका रेंज था, लेकिन ये वाला जो नया वाला ट्रांजेक्शन हुआ वो ये रेंज का है, यानी बहुत आगे की तरफ का है, इसलिए कॉल आती है। होप इट्स क्लियर, होप दैट मेक सेंस। Yes, sir. ओके, इट्स अ लाइफ स्किल। हाँ, तो बैंक हो गया। योर जॉब, जॉब में कहाँ है? ATS. गुड। एटीएस रिज्यूमे वगैरह होता है। एटीएस का फुल फॉर्म पता है किसी को? हम्म। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन सिस्टम। हाँ हाँ, ट्रांजैक्शन कहाँ से आ गया? रिज्यूमे को वो चेक करता है। टी से कुछ और है। Applicant tracking system maybe. ट्रैकिंग, करेक्ट। और एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, तो बेसिकली वो ट्रैक करता है कि कौन एप्लीकेंट कैसा है बेस्ड ऑन द रिज्यूमे, ठीक है? और जॉब में को पायलट है, जो कि जैसे मेरी कंपनी में आ गया है। अगर आप काम करते होंगे तो आपको भी पता होगा, को पायलट इज एवरीवेयर इन इन द कंपनीज, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है, ठीक है? चैट जीपीटी वगैरह, क्लॉड, ये सब अभी नहीं आया है, बट वी नेवर नो कि कब क्या हो, ठीक है? स्कूल में कहाँ पे एआई? Smart classes maybe. हाँ बिल्कुल, स्मार्ट क्लासेस में या कैमरे में। कैमरे आप जो लगे होते हैं उसमें आप अगर ने नोटिस किया हो तो वो पैटर्न्स को समझता है कि कब मूवमेंट हुई, कब नहीं हुई, राइट? कब सस्पिशियस मूवमेंट हुई, क्या नहीं होना चाहिए था, एंड ऑल, है ना? और बाकी एलएमएस सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, फिंगरप्रिंट सिस्टम्स भी होते हैं कुछ स्कूल्स में, ऑफिस में तो होते ही हैं, राइट? तो इट्स ऑल ऑन एआई साइड। क्यों बोल रहा हूँ मैं एआई, धीरे धीरे भी और समझते हैं उसको, ठीक है? इट्स अ लाइफ स्किल ऑब्वियसली। ईमेल जैसे हम 2005 में भेजते थे, या स्मार्टफोन 2012 में हो गए,
जो आए, ऐसी एआई भी अब ऐसा हो जाएगा। आप इमेजिन करिए, मेरी बेटी है 2 साल की, और अगर उससे मैं पूछूंगा तो वो एआई से ही शुरुआत करेगी, राइट। तो जितने भी नए जनरेशन है या जो भी जेनजीज भी हैं, उनके लिए अब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है कि विदाउट चैट जीपीटी, विदाउट क्लॉड या विदाउट एनी एआई टूल वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी हमारे लाइफ के अंदर आ चुकी हैं। जैसे व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप वो चीज नहीं रही कि सीखना पड़ेगा, राइट। लेकिन जो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बिना सीखे या बिना किए नहीं आएंगी, जैसे क्लॉड, आप यूज करिए। मैं यही प्रमोट करूंगा। जो भी पूछ रहा था कि कैसे शुरुआत करना है, तो यही है, पहले आप खुद से ऐप डाउनलोड करिए और शुरू हो जाइए। जैसे चैट जीपीटी आप करते हैं, क्लॉड से शुरुआत करिए, ठीक है। देखिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, खुद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो व्हाट इज एआई, अब हम असल में आए हैं। तो एआई इक्वल्स टू टीचिंग कंप्यूटर्स टू डू थिंग्स दैट नॉर्मली नीड ह्यूमन थिंकिंग, ठीक है। सबसे सरल भाषा यही हो सकती है। तो टीचिंग कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर्स को पढ़ा रहे हैं कि भाई तुम ये काम करो जो नॉर्मली हम लोग ह्यूमन सोचता है या ह्यूमन करता है, वो सेम चीज, वो सेम पैटर्न या लॉजिक या जो भी आप कह सकते हैं, वो हम एआई से कंप्यूटर्स को पढ़ा रहे हैं। और जब वो पढ़ ले रहा है, समझ ले रहा है, उसी को हम एआई बोल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चे की बात करें, थिंक ऑफ अ चाइल्ड, यू डोंट हैंड अ टॉडलर और रूल बुक फॉर व्हाट इज अ डॉग, ठीक है। यू जस्ट शो देम 100 डॉग्स। इंडीड, आप इमेजिन करिए बच्चे को बताना है कि डॉग ऐसा होता है, तो क्या आप डॉग को सिर्फ बोल दोगे डीओजी डॉग तो वो समझ जाएगा वो डॉग क्या होता है? नहीं, जब तक आप दिखाओगे नहीं इसको। या डॉग के बारे में बताने लोगों कि डॉग के 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, वगैरह वगैरह, जो कि सच भी है, ऐसा नहीं है। बट क्या आप ऐसा बताओगे? हाँ ना, बताइए, या इनपुट्स दीजिए कि जो मैं हम्म। कहना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स और किसकी भी हो सकती हैं। अगर मैं समझाने लगूं व्हाट इज अ डॉग, तो बताइए, सबकी हो सकती हैं, सभी एनिमल्स की तो यही होती हैं। एग्जैक्टली, जिसके भी 4 पैर होंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें जरूरी होगा कि उसको इमेज दिखाएं। इसीलिए बुक्स में बड़े बड़े अच्छे अच्छे इमेज होते हैं, या हम सामने से भी दिखाते हैं, ठीक है, कि डॉगी है या बॉबो करते हैं, जो भी है, राइट। आजकल मैं ही कर रहा हूँ। तो तभी वो सीखते हैं। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 10 बार, और जितने बार देख लेते हैं, तो आप खुद इमेजिन करते हैं कि बच्चे अब अपने आप आपको दिखाते हैं कि देखिए डॉग, देखिए कैट, या जो भी है। तो एग्जैक्टली यही पैटर्न है एआई का, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक, मशीन लर्निंग का, ठीक है। जैसे हमने बोला था एआई बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर जेन एआई एक छोटी सी चीज है, ऐसी एमएल। तो एआई के अंदर पहले स्टेप पे कौन आता है? एमएल, विच इज मशीन लर्निंग। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि लर्निंग की बात हो रही है। तो जैसे ह्यूमन लर्निंग करता है, बच्चा लर्निंग करता है, ऐसे हम मशीन भी लर्निंग कर रहा है, ठीक है। और वो भी ऐसे ही लर्निंग करता है कि उसको आप इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस दिखाते हो या बहुत सारे टेक्स्ट दिखाते हो। तो जो भी आप सिखाना चाहते हो वो चीज आप उसको देते हो, दिखाते हो, और वो उससे पैटर्न निकालता है। अब वो कैसे निकालता है वो बहुत ही आगे की कॉन्वर्सेशन है। बट अभी के लिए एक एक हाई हाई लेवल के लिए आप ये समझिए कि आप ट्रेनिंग देते हो उसको, ठीक है। जैसे बच्चे को ट्रेनिंग देते हो, है ना, चीज़ों को बोल बोल के, दिखा दिखा के, बता बता के, और कई दिन तक, वैसे ही मशीन लर्निंग में भी ऐसा ही कुछ होता है। किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए। Yeah. So is AI learning and machine learning, are they both different terms? एआई लर्निंग कुछ नहीं होता है, Okay. मशीन लर्निंग ही होता है, ठीक है। बिकॉज मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ एआई, इसलिए हम एआई लर्निंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल Mm-hmm. इंटेलिजेंस बोलेंगे एआई को। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट आर्टिफिशियल लर्निंग और एनी लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ एआई, एंड मशीन लर्निंग इज द थिंग जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। So if we are training an AI, so the process will be called, we are training it basically using machine learning, right? यूजिंग मशीन लर्निंग, करेक्ट, हाँ, दिस इज द Okay, करेक्ट okay. वर्ड, है ना, यूजिंग मशीन लर्निंग, है ना। और मशीन लर्निंग क्या होता है, फिर वो एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। तो जेन एआई क्या है? आपका एक एप्लीकेशन है, एक प्रोडक्ट है जो बन के आया आपके पास, चैट जीपीटी, राइट। प्रोसेस नहीं है जनरेटिव एआई। जेन एआई प्रोसेस नहीं है, जेन एआई एक एप्लीकेशन है जो आप यूज कर रहे हो, जो कि जनरेट कर रहा है यूजिंग द लॉजिक जो भी पीछे हुआ है, ट्रेनिंग वगैरह जो भी हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में समझें कि कोई कोई भी चीज एआई तब बनती है जब हम उसे मतलब मशीन को या कंप्यूटर को हम सिखा देते हैं वो चीजें करना जो हम जानते हैं या जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। फर्क है इसमें कि बोलना रूल
और बोलना पैटर्न। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर कोई लेट्स से वोटिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं अगर कोई 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो दे आर गुड फॉर वोटिंग, राइट, दे आर वैलिड फॉर दैट। और अगर कोई 18 से कम है तो वो अभी एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए, राइट। ये क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें क्या है, एक लॉजिक है, कह सकते हैं कि 18 या 18 से ज्यादा मतलब एलिजिबल टू वोट और 18 से कम में इन एलिजिबल टू वोट, करेक्ट, मेकिंग सेंस। क्या इसमें पैटर्न भी है? पैटर्न नहीं, पैटर्न नहीं है। पैटर्न तब होता है जब और भी चीजें मैं बोलता है, जैसे कि 2 4 6 8 10, अब आगे क्या आएगा, 12, राइट, ये पैटर्न हो गया। यहां भी लेकिन लॉजिक है, तो हर पैटर्न का कोई ना कोई लॉजिक होता है, और कुछ चीजों का सिर्फ लॉजिक होता है, वहां पैटर्न नहीं होता, ठीक है। तो जहां पे लॉजिक होता है, सिर्फ लॉजिक बता देने से वो एआई नहीं होता, वो उसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? जहां पे मैं लॉजिक दूं, जैसे पाइथन है या कोई भी एक्सेल है ना, जहां रूल लिखूं कि अगर अगर यूजर की एज है ना, या कोई भी आदमी की एज, कस्टमर की एज 18 से ऊपर है तो वो एलिजिबल टू वोट है, वरना नहीं है। क्या लगता है ये क्या कहेंगे इस चीज को? हार्ड आपके कोडिंग। हार्ड कोडिंग, हाँ ठीक टर्म है, और बताइए। ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन कि कल को फिर नई एज आई, एक्सेल में अगर है, कल को नई एज डाली आपने, तो आपको बार बार नहीं लिखना है रूल, वो अपने आप बता देगा कि एलिजिबल है या नहीं है। इमेजिन करिए कि पहले आपके पास 10 लोग थे, ठीक है, तो आपने देख भी लिया और आपने समझ भी लिया, लेकिन अचानक से उसमें 2 लाख लोग आ गए, एक्सेल में एंट्रीज आ गई, तो ऑब्वियसली आप नहीं देखेंगे, जा जाके आप एक फॉर्मूला लगाएंगे और उस पैटर्न से सारी चीजें आ जाएंगी कि हाँ ये फॉर्मूला है तो ये लॉजिक से ये होता है। तो क्या ये एआई है? नहीं, ये एआई नहीं है, ये क्या है, ऑटोमेशन है। आपने फॉर्मूला लिखा है। इसीलिए जब भी हम बोलते हैं ना टीचिंग कंप्यूटर्स, तो वो टीच नहीं है, वो तो रूल बता रहे हो आप, है ना। टीचिंग क्या है, जब पैटर्न की बात आ जाती है, जैसे कि आप इमेज दिखा रहे हो किसी को और बोलो कि ये क्या है बताओ, इमेजिन करिए उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल डॉग की बात करते हैं, डॉग के लिए क्या रूल लिखेंगे, जैसे कि हम वोटिंग के लिए लिख रहे थे, कोई बताए? Basic characteristics of the dog. क्या? Physical appearance. क्या लगता है वो सही होगा? सबका वो नहीं हो सकता, आप क्या बोलेंगे कि ब्राउन होता है, वाइट होता है, या जो भी है, 2 कान होते हैं, 4 पैर होता है, क्या डिफरेंशिएटर बोलेंगे जो उसको डॉग बनाएगा, कैट नहीं? वॉइस, हम्म, डॉग की वॉइस। वॉइस क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके उसको बताएंगे? फिर इमेज हाँ, का क्या काम हुआ? I पहचानना think था, कोई अगर नहीं बोल रहा डॉग तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि वो डॉग है। I think the model can interpret on itself using computer vision. गुड, हाँ, तो यहीं पे मैं आ रहा था कि आप रूल नहीं दे पाएंगे, ठीक है, रूल नहीं दे पाएंगे, राइट, मानते हैं इस Right. बात को। Right. तो जहां रूल नहीं दे पाएंगे वहीं पे तो आप हार जा रहे थे। तभी तो पुरानी जगह समय में ये चीजें सिर्फ रूल से चल रही थी, बट शायद लोगों को एआई लग रही थी, कुछ चीजों पे सच में एआई था। तो रूल बेस्ड भी चीजें हो सकती हैं, रूल बेस्ड के साथ जब पैटर्न भी आ जाता है, उसी में फिर ह्यूमन भी आ जाता है, तब वो ओवरऑल एक अच्छा एआई बन जाता है, ठीक है। तो एआई इज नॉट ओनली कि आप बस सिखा दो हो गया, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, बट हाँ एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कि कब एआई चीज हो जाती है और कब एआई नहीं होती, राइट। तो इमेज इमेज हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया, आपका वॉइस हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो ये टफ हो जाता है। जहां पे रूल होता था, जैसे डेटाबेस टेबल होता था कि ये हो तो ये कर देना, ये हो तो ये कर देना, अगर 100 में 50 नंबर से ज्यादा हो तो कह देना कि पास, अगर 40 से कम हो तो कह देना कि फेल, राइट। तो ये क्या हो गया, लॉजिक हो गया, एआई नहीं है ये। एआई कहाँ हो गया कि जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोगों के मार्क्स हैं, और उसके बेसिस पे आप ये रिकमेंड कर दो कि किसका वीक एरिया है, किसका स्ट्रांग एरिया है, उसको किसको क्या पढ़ना चाहिए, बेस्ड ऑन द जो मार्क्स है, समझ रहे हो। तो जहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाए, जहाँ पे एक एक
आप समझो कि ह्यूमन थिंकिंग जैसी चीज दिखने लगे आपको कि यार ये कैसे जादू जैसा हो रहा है, ये कैसे समझ गया, है ना। जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है आपको, सभी को करता है, या कोई है इसको रिकमेंड नहीं करता है, या Yes. यूट्यूब। तो क्या वो जो आपको रिकमेंड करता है वही मुझे भी करता है या अलग करता है? अलग ही करता है। क्यों करता है? बेस्ड ऑन आवर हम एग्जैक्टली कंज्यूम क्या करते हैं ऑन दैट प्लेटफॉर्म। करेक्ट। आपने पास्ट में क्या क्या चीजें देखी हैं, तो बेस्ड ऑन दैट बाकी लोगों ने क्या क्या देखी हैं, और जो बाकी लोग थे उन्होंने उसके बाद क्या देखी है, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं कि शायद आप भी यही देखोगे। काफी कुछ बोल दिया मैंने, फिर से बोलता हूँ। तो आपने जो देखी, ऐसे ही आप जैसे कुछ और लोगों ने भी वही सेम चीज देखी, उसके बाद उन्होंने कोई नेक्स्ट चीज देखी। तो एआई ये पता लगाएगा कि जो ऐसे टाइप के बंदे होते हैं जो अगला ये देखते हैं, तो जो ये पहला वाला है इसको भी वही वाला रिकमेंड अगर मैं कर दूं तो हो सकता है चांसेस ज्यादा हो, चांसेस ज्यादा हो। इट माइट बी ट्रू और नॉट ट्रू, विच मीन्स कि यहाँ पे 100% हम नहीं बोलते। हम बोलते कि हाँ 80% चांस हो सकता है, 90% चांस हो सकता है आप ना भी देखें क्योंकि आपका मूड नहीं है या शायद आपको पसंद ही नहीं है वो चीज। ठीक। तो ये पैटर्न है जो धीरे धीरे एआई समझता है। कैसे समझता है, क्या लॉजिक है, बहुत ये आगे की बात है। तो अभी हम बहुत ही हाई लेवल पे रखेंगे, ताकि क्यूरियोसिटी, जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ शायद आपके अंदर क्यूरियोसिटी अब आ रही हो, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल फील फ्री, गो रिसर्च। आप ये सवाल उससे पूछो कि कैसे मुझको नेटफ्लिक्स या यूट्यूब नेक्स्ट वीडियो बताता है, देखो क्या बताता है वो। उससे कहो लेमैन टर्म्स बताए, देखिए क्या बताता है, तो एक्सरसाइज भी होगी आपके लिए। और फिर हम जब नेक्स्ट संडे मिलेंगे तो उसमें हम फिर अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, नहीं तो आगे बढ़े। समझ में आया थोड़ा यही क्या है? या ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हाउ ऑफन डू यू यूज एआई? ठीक है। या पहले बोलते हैं कि आपने एआई यूज की है क्या अभी हाल ही फिलहाल में? ठीक है। तो आप फिर जाएं अपने मोबाइल पे, जो भी आप ओपन किया था आपने वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट हो रहा होगा। इज इट, क्या दिखा रहा है आपके मोबाइल पे, क्या दिखा रहा है? दैट शोइंग वेटिंग। हाँ, तो अब मैं कर रहा हूँ तो आप देखेंगे वहां पे। चलिए, आ गया होगा, चूज करिए उसे। तो देख सकते हैं रिस्पॉन्सेज स्क्रीन पर आप, होप इट्स विजिबल। सभी लोग वोट दे दें। 3 रिस्पॉन्सेज आ गए, 100% ही है वो। कोई और अगर आप चुनते तो वो उसमें परसेंटेज का बाइफर्केशन हो जाता। सो आई थिंक सभी लोग मल्टीपल टाइम्स अ डे कह रहे हैं। इज इट? कोई नहीं है जो बाकी और कह रहा हो? ठीक है, इट्स गुड। ठीक है, तो सभी लोग मल्टीपल टाइम्स अ डे कहते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ पे आपने जो है एआई यूज किया है। लेट्स से वीकेंड की बात करें, कल और आज में आपने कहाँ एआई यूज किया है? फील फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ। मोस्टली प्लानिंग अबाउट माय फर्दर फ्यूचर कैरियर। ओके, बाकी लोग बताएं। 2 days for ML Viva. हम्म, एमएल वाइवा। ओके, और बताइए। Yeah, preparing for job interview. जॉब इंटरव्यू, नाइस। तो ठीक है, ये तो हो गया एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? मैं पूछ रहा था कहाँ आपने यूज किया है। एक्चुअली मैंने एक फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई किया था। हम्म तो वहाँ पे पाइथन यूज करके एंड एलएलएम यूज करके एक कोडिंग लिखना था। हम्म। तो मुझे एलएलएम आता नहीं था, तो उसके लिए मैंने एआई का यूज किया था। नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हेल्प ले रहे हैं उससे, है ना। तो चलिए यहाँ पे ब्रेक करते हैं। यू ऑलरेडी यूज एआई एवरी डे। गूगल मैप्स करते हैं कि नहीं? यूट्यूब नेटफ्लिक्स करते हैं कि नहीं? फेस अनलॉक करते हैं भाई, आप लोग मोबाइल चलाते हैं रोज। ठीक है। तो ये मैं जानना चाह रहा था। तो सिर्फ चैट जीपीटी या ये जो भी आपने बताया वही नहीं है एआई, ये भी सब एआई है, लेकिन हम इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताइए। ऑटो करेक्ट करते हैं आप टाइपिंग के दौरान, गूगल सर्च करते हैं,
तो शुरुआती हमारी फेस अनलॉक से होती है या फिंगरप्रिंट अनलॉक से होती है, राइट। बैंक यूपीआई अलर्ट्स देता है आपको कि ये स्पैम हो सकता है, कॉल आती है तो स्पैम हो सकता है, नहीं हो सकता, ईमेल आती है तो स्पैम फोल्डर में होता है, शायद हो या ना हो। गूगल मैप्स तो ऑब्वियसली है, गूगल मैप्स पे थोड़ा और बात करते हैं। सभी लोग एग्री करेंगे इस बात से, जो भी सामने लिखा हुआ है ये सभी आप लोग यूज करते थे, लेकिन आपको शायद भूल गए कि वो एआई था, Exactly, sir. है ना। तो इसीलिए भूलना नहीं है, यू शुड बी अवेयर कि क्या क्या चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, ठीक है। सब कुछ एआई है। आप खुद सोचिए, अब आपको लगेगा कि हाँ सच में शुरुआत तो फेस अनलॉक से हुई थी, ठीक है। अलार्म लगाया था आपने, क्या वो एआई है? यस नो? Yes, maybe. मे बी? No. नो? कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं? No. No. नो, वाई नो? क्योंकि इस पहली पे बात तो कोई कोडिंग मतलब इसमें कोई ऐसा Exactly. प्रिडिक्ट नहीं करना है कुछ, क्योंकि ये एक नाइस, रूल है, जैसा अभी आपने बताया था कि एक रूल होता है, एक पैटर्न होता है। तो ये नाइस। बस एक रूल है कि 6 बजे बजना है अलार्म, दैट्स इट। इसमें कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना था। मे बी आई कुड बी It रॉन्ग। it may be fall under automation instead of AI. यस सर। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, कैन यू हियर मी? जस्ट Yes, sir. अ ग्लिच, लेट मी। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस। ओके, हाँ तो प्लीज शिवांगी, आप बोल रही थी। हाँ सर, मैं यही बोल रही थी कि अलार्म में जैसे आपने भी बताया था कि कुछ रूल होता है और एक पैटर्न होता है। तो अलार्म में बस एक रूल था कि जैसे 6 बजे बज जाएगा वो, उसमें कुछ बिल्कुल, पैटर्न नहीं था। तो इसीलिए ये एआई नहीं है, ये बस एक सिंपल रूल कंप्यूटर बेस्ड है, रूल रूल बेस्ड बेस्ड सिस्टम है। है, हाँ। राइट। तो बिल्कुल सच। तो एआई हर चीज में नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां पे है वो पता होना चाहिए, जो नहीं है वो भी पता होना चाहिए। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ लेकिन जैसे अब जो इनबिल्ट ऐप है उसमें नहीं होता, पर मैं एक थर्ड पार्टी ऐप यूज करता हूँ अलार्म का। तो उसमें क्या है कि अगर आपको अलार्म बंद करना है ना, तो आपको कुछ वो क्वेश्चंस देता है, जैसे कुछ एडिशन देते नाइस। हैं, वो सॉल्व करने होते हैं, और वो 3 या 4 बार आता है, तो हर टाइम अलग अलग नंबर आते हैं। तो आई थिंक वो मे बी एआई हो। ओके, नाइस। नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहां पे डिपेंड कि आप क्या कैसे बात कर रहे हैं, या अब पूरा तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये भी रूल बेस्ड हो सकता है कि सिर्फ फिक्स्ड हो कि ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। अगर आपके आंसर के ऊपर के बेसिस पे चीजें अगर होती हैं, है ना, वो भी वो आंसर जहां पे मल्टीपल चॉइस या हार्ड कोडेड ना हो कि सिर्फ 4 ही ऑप्शन दे सकते हो, जहां ओपन आंसर हो कि आप कुछ भी बोलो, क्योंकि उसको फिर आप रूल नहीं लिख पाओगे। आप इमेजिन करिए इस चीज को, अगर मैं आपसे कोई आंसर लेता हूँ और आप कुछ भी अगर लिख दो, तो मैं कहाँ पे वो कोड कर पाऊंगा कि ये लिखा हो तो ये होगा? समझ पा रहे हैं? तो जहां पे ओपन होती हैं चीजें, वहां पे इट्स हार्ड टू टू कैटेगराइज एनीथिंग और पुट द रूल। तो वहां पे हाँ एआई हम बोल सकते हैं कि लगा होगा, अगर इस तरह का होता है तो। होप इट आंसर्स। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके। तो गूगल मैप्स के बारे में बात करते हैं। कौन बताएगा गूगल मैप्स को? थोड़ा सा समझाइए कि कहाँ पे आपको लगता है गूगल मैप्स जो है वो एआई है। I think while navigation, it detects the traffic density और हम्म, उसके बेस पे वो हमें सबसे शॉर्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट रास्ता बताता है. So I think in that portion AI is used. ओके। तो गूगल मैप पहले जब आया था, तो क्या उस समय ही ऐसे बिहेव करता था, या अभी नहीं, ऐसा बिहेव कर रहा है? like from past few years, it's हाँ, been starting तो acting. बहुत पहले नहीं था ऐसा, बट गूगल मैप्स तो था। तो वहां पे रूल बेस होता था, ठीक है, कि बताता था कि लेट से, इमेजिन करिए 10 किलोमीटर आपको जाना है, आपको अपने घर से लेट से मूवी देखने जाना है 10 किलोमीटर्स पे, और एक रूट है जो 15 किलोमीटर्स वाला है, एक 10 किलोमीटर्स वाला है। आप कौन सा चुनोगे? Shortest. 10 किलोमीटर वाला, राइट। Hmm. इसी बेसिस पे वो गूगल मैप पहले चलता था, जो कि रूल बेस्ड था। क्यों? क्योंकि एआई उतना इवॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, जो कि सेंस भी बनता है। इमेजिन करिए अचानक से उस 10 किलोमीटर वाले रूट पे कोई एक्सीडेंट हो गया, या कुछ फ्लड टाइप का सिचुएशन हो गया, कोई प्रोटेस्ट हो गया, एक्सेट्रा। अब क्या होगा? रूल बेस्ड क्या बोलेगा?
तब भी वही बोलेगा क्योंकि हमने उसको ट्रेन नहीं करा करेक्ट। है उसके हिसाब उसको से। ये बोला है भाई यहाँ से यहाँ पहुंचना है, बताओ सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वही बताना। ठीक, तो इमेजिन कर पा रहे हैं आप कि कहाँ प्रॉब्लम आई और क्यों हमें प्रिडिक्शन की जरूरत पड़ रही है, क्यों एआई और मशीन लर्निंग की बात हो रही थी। तो रूल बेस्ड हमेशा एक फिक्स्ड रूल होता है, हार्ड कोड होता है कि यही होगा। लेकिन जब हम एआई की बात करते हैं वहां प्रिडिक्शन आ जाती है। ठीक है, और जब प्रिडिक्शन आ जाती है वहीं एआई होता है। बट प्रिडिक्शन होगा कैसे? डेटा से। कैसे पता चलेगा कि कंजेशन है आगे, या भीड़ लगी है, प्रोटेस्ट है, जो भी है, क्योंकि वो तो लाइव हो रहा है। तो कोई बताएगा कैसे डेटा मिल रहा है उसको? लाइक अगर उस समय वहाँ पे ट्रैफिक की डेंसिटी ज्यादा होगी तो मस्ट बी एवरी यूजर कैरिंग अ फोन विद देमसेल्फ। तो उसके अकॉर्डिंग गूगल ट्रैक दैट देयर इज मतलब यहाँ पे फोन की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम्म। ट्रैफिक डेंसिटी भी डेफिनेटली ज्यादा नाइस। होगी। तो उसके बहुत अच्छा अकॉर्डिंग इंसाइट था। वो डेटा इंटरप्रेट करता है। यस। तो क्योंकि सभी लोग गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मोबाइल पे डिपेंड करेगा कि 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 लोग कितने समय में कितना मूव कर पाए, राइट? क्योंकि डेटा तो हम शेयर कर ही रहे हैं कि मेरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये है, मैं यहाँ से यहाँ जाने में लेट से मैंने 15 मिनट लगा दिए, लेकिन लगने थे 2 ही मिनट। इसका मतलब एक दिक्कत है। तो आपका इनपुट जरूरी नहीं है वहां पे। वैसे पूछता भी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कि क्या रोड ब्लॉक है, क्या दिक्कत है। कभी कभी हम कर भी देते हैं अगर हम मूड में होते हैं, बट नहीं भी करते तो इसका इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। करेक्ट। तो अल्टीमेटली वो प्रिडिक्शन करता है और चीज़ों का डेटा लेता है और लाइव लेता है। तो इसीलिए इमेजिन करिए वो कितना डिफिकल्ट काम होता होगा, वरना गूगल मैप जैसा सब लोग बना लेते। राइट। इट्स ऑल अबाउट कि कितना इंटेलिजेंट पहले तो आप हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन आपको होना पड़ेगा ताकि आप एआई को वो बता सको, समझा सको, सिखा सको। एंड देन इतने यूजर्स को इतने लार्ज स्केल पे, करोड़ों लोगों के लिए आप चीज़ों को ईजी बना सकें नेविगेट करना। ठीक है। कोई कोई इसमें क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई टेक इट एज नो। ग्रेट। व्हाट इज जनरेटिव एआई? तो अभी हमने बात किया था, तो अभी बात करते हैं कंपैरिजन की। ओल्डर एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। दोनों एआई हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो रूल बेस वाला काम गया। जनरेटिव एआई के अंदर ही हैं हम। ओल्डर एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। ओल्डर एआई में क्या है? सॉर्ट्स एंड प्रिडिक्ट्स व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। प्रिडिक्ट वो भी कर रहा है, सॉर्ट भी कर रहा है, कम ज्यादा जो भी है। इज दिस ईमेल स्पैम? यस और नो? सभी के ईमेल इनबॉक्स में आता है ईमेल स्पैम। हाँ। तो वो क्या है? एआई है। राइट। कैसे पता चला उसको? कोई बताएगा कैसे पता चला कोई स्पैम है? पैटर्न रिकग्निशन। कैसे पता चल रहा? मैं बोल रहा हूँ कि कैसे ह्यूमन थिंकिंग जो हम करते, वो क्या करते। अगर आपसे मैं बोलूं कि बताओ स्पैम है मेल या नहीं है, क्या आप बताओगे, कुछ क्या दिमाग में? अनयूजुअल ईमेल आईडीज हो। ठीक है, गुड, पहला पैटर्न। दूसरा? और भी लोग बताएं। अनयूजुअल ईमेल आईडीज एंड? यस। बस? आवाज आ रही मेरी सभी को? Yes, sir. तो बताइए प्लीज। आप कैसे जानेंगे अगर मैं दो ईमेल रखूं, एक अच्छा एक बुरा, एक स्पैम और एक नॉन स्पैम, कैसे आप बताओगे ईमेल आईडी के अलावा? कुछ भी इनपुट्स दीजिए भाई, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, पढ़ के देख मे लेंगे बी आप। मे बी हाँ बोलिए। लैंग्वेज उसकी उसकी हाँ, लैंग्वेज। तो वही उसी पे आ रहा था मैं, तो बताइए क्या। जैसे कि? मे बी ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, गुड। और? Unusual, like unusual greetings, like something like that. ठीक है, या or आप कह लीजिए or showing अर्जेंसी। हाँ, unexpected demand, gifts, like अर्जेंसी। something like that. अर्जेंसी कह Maybe सकते हैं, urgency. है ना? अर्जेंसी क्रिएट किसी भी तरह हो सकती है कि भाई कि आपकी लॉटरी निकली है ना? या आप लेट से कि आपका ये Exactly. इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, ये पॉलिसी Hmm. लैप्स होने वाली है, तो आप पैनिक कर जाएंगे, राइट? तो यही सब चीजें हैं, यही पैटर्न्स हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, राइट?
तो जब ये पैटर्न की बात आ जाती है, क्योंकि हो सकता है 10 ईमेल आप एकदम दिमाग से लगा लो, हाँ ये 10 ईमेल तो एकदम ही स्पैम होते, बट एक 11वां ईमेल था जो आप समझ नहीं पाए थे, क्योंकि ह्यूमन माइंड का एक लिमिट है, ठीक है। या तो आप बहुत टाइम लीजिए, बहुत लोगों से पूछिए, सर्वे कराइए। तो एआई क्या कर रहा है, इतने जो ईमेल आ रहे हैं आपके सबका रीड कर रहा है, और रीड करके समझ चुका है कि क्या चीज स्पैम और क्या चीज नहीं है, और डिपेंड्स कि वो आपको कर देता है। विच मूवी विल दिस यूजर लाइक, नेटफ्लिक्स की बात जो की थी मैंने, ये सब ओल्डर एआई है, आप सोचिए, ये सब नई नई लग रही होंगी आपको, बट ओल्डर है। इज दिस कैट और अ डॉग, अभी बात की हमने, ये भी ओल्डर है। इसीलिए जो जनरेटिव एआई है, ये नया एआई है जो कि जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ब्रांड न्यू थिंग्स। राइट मी एन ईमेल टू माई बॉस, ये मत बताओ स्पैम है, वो तो ठीक है, पुरानी बात हो गई। मेरे को ईमेल लिख के दे दो, तो आप समझ रहे हो क्या हुआ, क्या चेंज आया एकदम से। तो ओल्डर एआई जो है, जो कुछ जनरेट नहीं कर रहा था, वो कैटेगराइज कर रहा था बेस्ड ऑन द थिंग्स, है ना। उसका आउटपुट एक एक कैटेगोरिकल वेरिएबल हो रहा था। कैटेगोरिकल मतलब यस या नो, ठीक है। या न्यूमेरिकल वेरिएबल हो रहा था कि बारिश, टेम्परेचर क्या होगा लेट्स से कल, है ना, या बारिश होगी या नहीं होगा, फिर यस नो आ गया। लेकिन जनरेटिव एआई क्या था कि वो बात कर रहा था आपसे, आपके लिए जनरेट कर रहा था, जैसे इमेज या आपके लिए ईमेल या कोई भी टेक्स्ट। ओके, होप इट क्लियर। Yes, sir. ओके, तो जनरेटिव एआई इन रियल लाइफ, राइट एंड रिप्लाई करते हैं आप, एक्सप्लेन टीच हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीपीटी बनाई है मैंने एआई से, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग होगी, इसकी पूरी की पूरी जो हम बात कर रहे हैं, इसका एक एक समरी आ चुका होगा जो आपसे मैं शेयर करूंगा। ये सारी चीजें एआई है इन सब चीजों में। विजुअल क्रिएट करना, कोड लिखना, डेटा को सेंस बनाना, जैसे एक्सेल है, मैं बोलूँ कि इसको एनालाइज करो, और रिसर्च करना फास्ट, ठीक है। अंडर द हुड एक्चुअली क्या होता है ये समझते हैं। एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, अगर बहुत ही प्लेन उसमें हम समझें, तो बेसिकली प्रिडिक्शन ऑफ नेक्स्ट वर्ड को बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑटो कंप्लीट जो होता है आपके कीबोर्ड में, वो भी एक एलएलएम का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और पूरे इंटरनेट के डेटा पे उसको ट्रेन किया गया है। पूरे इंटरनेट मतलब सारी बुक्स, सारे यूट्यूब, सारे विकिपीडिया, सभी कुछ, जितना कुछ इमेजिन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसीलिए लार्ज बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, लार्ज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लार्ज डेटा से ट्रेन किया गया है। लैंग्वेज तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट अ फुल आंसर, यही मेन इसका सार है, आप कह सकते हैं। जैसे कि द कैपिटल आपने लिखा अगर, तो द कैपिटल के बाद ऑफ आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सिर्फ ऑफ ही नहीं आएगा, द कैपिटल के बाद ऑफ के चांसेस ज्यादा है, और जैसे जैसे लिखते जाते हो चांसेस बढ़ते जाते हैं। द कैपिटल, क्योंकि सजेस्ट भी वो एक चीज नहीं करता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, थोड़ी और भी चीजें करता है, बट आप उसमें चुनते हो। तो द कैपिटल ऑफ फ्रांस, अब जितना जैसे ये द कैपिटल ऑफ फ्रांस हुआ, वैसे ही वो इज रिकमेंड करेगा, प्रेडिक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वही सेंस बनाता है, क्योंकि वो ट्रेन हो चुका है इतने सारे डेटास पे, तो वहां पे इसको यही दिखा पैटर्न कि जब ऐसा लिखते हैं तो ऐसा ही होता है। और क्योंकि द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज आ गया, तो अब उसको क्या पता चल गया है कि फ्रांस की कैपिटल मुझे खोजनी है, वो भी उसके पास है, और वो उसको प्रेडिक्ट करता है। तो ये बेस्ट फिट लगा उसको कि द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज क्या, पेरिस, क्योंकि ये 100% राइट है। यहाँ पे 90% की बात नहीं है। बट द कैपिटल के बाद ऑफ के बाद फ्रांस जो था उसमें चांसेस थे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या पूछो। जैसे आप अगर आप लिखो द कैपिटल ऑफ, तो अक्सर वो इंडिया या तो बोल सकता है आपके लिए, क्यों? क्योंकि हम इंडियंस हैं। या अगर आपकी सर्च हिस्ट्री उसके पास होगी तो वो रिकमेंड करेगा, ठीक है। सो गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है कि एलएलएम किस तरह से काम कर रहा होता है। तो जब भी कोई पूछे अगली बार या आपके मन में हो, तुरंत इसको प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड से याद रखिएगा, ऑटो कंप्लीशन जैसा। होप इट मेक सेंस। एनी क्वेश्चंस? Yeah, I do गुड, have one. यस That as प्लीज far प्लीज as आस्क। I know, that LLMs are the basic models we are using right now, like ChatGPT, Claude. These are called LLMs. या So the example which you have shared of that the capital of France is that doesn't relate to that exactly. Can you please explain me about that? when you're saying ChatGPT is an LLM, are you saying? Hmm. Hmm. No, it is not LLM, it uses LLM, ठीक है। Okay. लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक चीज है, आप इसको टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, जो कि यूज करता है कौन? चैट जीपीटी या क्लॉड। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, ये एक तरह से आपका प्रोपराइटरी हो चुका है, मतलब कि एक ही कंपनी का हो चुका है। जैसे चैट जीपीटी का एलएलएम खुद का है, राइट। जैसे इस समय 4.4 4.5 ऐसी चीजें चल रही हैं।
क्लाउड में ओपस 4.8 आया हुआ है। ये मॉडल्स हैं जो ट्रेन हुए हैं, यही असली जड़ है कि क्यों कंपनीज जो हैं इस पे इन्वेस्ट करती हैं और क्यों ये इतना महंगा है। ठीक है, तो एलएलएम क्या होता है बस हम ये देख रहे हैं, अंदर वो कैसे बना हुआ है आर्किटेक्चर हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इट्स टू डिफिकल्ट फॉर द सेशन 1, बट विद टाइम वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, होप इट आंसर्स। Okay. Okay, so it uses LLM. Okay, it is not an LLM. ठीक है। Hmm. So which one is generative AI? अपने उस पे जाएं और बताएं स्क्रीन पे। Which one is generative AI? दिमाग लगाइए, सोचिएगा, तब वोट करिएगा क्योंकि एक ही बार कर सकते हैं। Which one is a generative AI? अभी हमने समझा है। I'm unable to see options at my phone. Not able to see. बाकी लोग देख पा रहे हैं? Yes, no? यस सर। ओके, तो प्लीज आप फिर से एक बार रिफ्रेश करिए या तो। You should be able to. Got it. There must be some network issue. हाँ, नो वरीज। तो ऑप्शंस हमारे पे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बाकी सभी लोग बताएं अपने मोबाइल पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ट्रिक क्वेश्चन है। एआई नहीं पूछा मैंने, जनरेटिव एआई पूछा है, बहुत पर्टिकुलर। जिसने भी ये चैट जीपीटी बताया है, कोई बताएगा कौन था और क्यों? Because ChatGPT is writing a poem for us. It's building something which is not existing earlier, right? So नाइस, it's generating a new इट इज thing. क्रिएटिंग, या इट इज जनरेटिंग। बाकी सारी चीजें जनरेट नहीं कर रही थी, जैसे मैंने बताया था, वो यस नो कर रही हैं या रूल फॉलो कर रही हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ओल्डर एआई थे जो अभी हमने देखा। ये चैट जीपीटी राइटिंग और बर्थडे पोएम इज समथिंग जो जनरेट कर रहा है, इसलिए जनरेटिव है। सो गुड गुड टू नो, चलिए हम लोग सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, लेकिन सर बर्थडे जो पोयम है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रही होगी ना, मतलब जो लाइन वाइज जो पोयम, तो जनरेट एग्जिस्ट कहाँ से? नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एज इज कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है वो आपको, है ना। वो जो आप पूछ रहे हो उस वे में वो आंसर दे रहा है। तो हाँ, आप सही हैं, हो सकता है वो एग्जिस्ट भी एग्जैक्टली कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस समझते हैं आप लोग, राइट? हमने पढ़ा था बचपन में। तो अगर मैं बोलूँ कि आई लव टू सिंग, ठीक है ना। अब आई लव टू सिंग मैंने कहीं बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बोलो कि शशांक को क्या पसंद है, व्हाट शशांक लव्स, तो क्या बोलेगा? आई लव टू सिंग। बताइए No. क्या बोलेगा? वही पूछ रहा हूँ आपसे। आप पूछो व्हाट डज शशांक लव लाइक, शशांक लव सिंगिंग, ऐसा। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। क्यों कर दिया उसने? वो तो था नहीं वहां पे। थर्ड पर्सन। इट्स ऑल अबाउट एलएलएम, है ना। यही तो दिमाग है, जैसे आपका दिमाग है। मैं आपसे पूछूं आपने ये कैसे सोचा, तो थोड़ा बताइए, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग है। आपने ये कैसे सोचा शिवांगी या लक्ष्य क्योंकि कि सब्जेक्ट चेंज हो गया ना हमारा। हाँ, यानी इंग्लिश ग्रामर आ गया आपके दिमाग में सब कुछ अचानक से, जो बचपन में पढ़ा था, राइट? राइट। कि आपने सब्जेक्ट और रूल लगाया कि सब्जेक्ट ये होगा, प्रेडिकेट ये होगा, वर्ब ये लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ किया आपने? किया एक्चुअली, बट आपने दिमाग लगाया नहीं, सबकॉन्शियसली हम इतने ट्रेन हो गए हैं। वर्ड ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के लिए बहुत इजी हो चुका है। वरना एक्टिव पैसिव वॉइस में नंबर नहीं आते थे मेरे, मुझे याद है। आपके आते थे क्या? सर वही सही होते थे। नो। अच्छा, वही सही होते थे। नाइस। नहीं, अच्छी बात है, अगर वो सही होते थे, तुक्के से हो जाते थे तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे मेरे तुक्के भी नहीं लगे और दिमाग से भी नहीं कर पाया मैं कभी। ठीक है, अब शायद चीजें इजी हो गई हैं क्योंकि जब बुक्स पढ़ते हो आप, जब खास करके जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो और रोज बोलने लगते हो तो समझ में आने लगता है। आप समझ रहे हो, होप इट आंसर्स माय क्वेश्चन, कि वो कॉपी पेस्ट नहीं करता, वो सेंस बनाता है। और सेंस कैसे बनाता है? ग्रामर से, यानी हाँ, ग्रामर भी सिखाया गया है उसको। तो इतना सारा उसको सिखाया गया, आप इमेजिन करो मैं आपको सब कुछ सिखा दूं, है ना, और सब कुछ याद रहे, ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो आप इंटेलिजेंट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? बिल्कुल। तो बस यही हो रहा है। इसीलिए एआई इंटेलिजेंट है, वो भूलता भी नहीं है, वो इतना ज्यादा पढ़ चुका है कि हर चीज एग्जैक्टली वही बोलता है। और आपको वो जादू लगता है कि इसको कैसे पता है। ठीक है, उसको पता नहीं है ना।
ध्यान से समझिएगा, वो प्रिडिक्ट कर रहा है, इतना ज्यादा उसके पास है कि वो ये समझता है कि इसका ये आंसर हो सकता है। इसीलिए हेलुसिनेशन भी एक चीज होती है, जरूरी नहीं है कि एआई सही बताए, हो सकता है वो गलत रेफरेंस को ही लेके आपको बताने लगे, इसीलिए बोलता है कि इट कैन बी इनएक्यूरेट, है ना, प्लीज चेक बिफोर यू यूज और एनीथिंग, राइट? क्लियर? Get it? यस सर। मजा आ रही है? मुझे तो आ रही है। Yes, हाँ, that was an काफी। interesting. ठीक है, चलिए, तो व्हाट आर एआई एजेंट्स, जल्दी करते हैं। चैटबॉट टॉक करता है और एजेंट काम करता है। तो चैटबॉट क्या है, एग्जांपल देंगे चैटबॉट का कोई? चैटबॉट का, चैट जीपीटी नहीं। कहाँ यूज लाइक किया? कस्टमर केयर Customer चैटबॉट। support, हम्म, कहाँ यूज किया? हमेशा एग्जांपल दिया करिए, जनरल नहीं। like अभी Swiggy, हाल ही में कहाँ Zomato, यूज किया है? गुड, स्विगी। और like internet service. ठीक है, तो क्या है वो? चैटबॉट है। चैटबॉट आपको लगता है कि थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है चैट जीपीटी से? हाँ Hmm. बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न पे बात करता है, मतलब मैं अगर फेयर, कुछ भी बोलती हूँ तो वो घूम करेक्ट, फिर के अपनी ही बात पे आ जाता है, ऐसा। करेक्ट। हाँ, क्योंकि उसके पास इतना सारा बेस नहीं है, ठीक है। उसके पास कुछ गिने चुने बोले हैं, ये बोलेंगे तो ये बोलना है, ये बोलेंगे तो ये बोलना है। उसी में कुछ कुछ एआई चीजें डालते हैं, कोशिश करते हैं, बट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है, प्लीज बताइए। हाँ, सो जैसे भी आपने बताया कि वो जो चैटबॉट्स होते हैं उनको अगर सिचुएशन बेस्ड होता है ना, कि इनको अगर ये बोलेंगे तो वो ये बोलना है, हम्म, सो इजंट दैट बिकम द पार्ट ऑफ लॉजिक एंड ऑटोमेशन अगेन? हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, तो फिर चैटबॉट एआई आपका। कैसे फिर? हाँ, तो वही तो दो चीजें हैं यहाँ पे। पहले का चैटबॉट अगर बात करें तो और भी घटिया था कि नहीं? आपने हम्म। फील किया है और भी खराब था। हम्म। बस ऑप्शन चूज करने के लिए देता था, पहले तो बोलने के लिए भी नहीं देता था आपको, कहता था राइट। कि ये चूज करो, मैं ये बोलूंगा। ये हो गया रूल, एकदम रूल। अब थोड़ा बेटर हुआ है, फिर भी उतना अच्छा नहीं हुआ, राइट? कि ठीक है, आप लिख दो, लेकिन बोलूंगा मैं फिर भी वही। तो उससे थोड़ा थोड़ा वर्ड्स ले ले रहा है, तो ये मिक्स हुआ हल्का सा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास सहारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है। इसलिए आप अगर वो थोड़े थोड़े वर्ड बोलोगे तब तो ठीक है, लेकिन आप कुछ भी बोलने लगोगे तो वो भी कुछ भी बोलेगा फिर, ठीक है। क्योंकि उसके पास कमी हो जाती है दिमाग की। इट्स लाइक कि आपको बुक, मैंने किसी एक बंदे को 10 बुक दे दिया एक टॉपिक पे, और किसी एक बंदे को एक बुक दिया है उसी टॉपिक पे, कौन बेटर आंसर करेगा? 10 बुक वाला। क्यों करेगा? उसके पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं कि इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था, तो इसका ये भी सेंस हो सकता है इस एक बुक का ये कॉन्टेक्स्ट ले, दूसरे बुक का ये कॉन्टेक्स्ट ले। यही तो होता है, ये तो हम भी करते हैं रिसर्च में, इजंट इट? यस सर। तो यही है एजेंट। जब हम बात करते हैं तो वो देखिए क्या है, आस्क अ चैटबॉट टू बुक अ कैब एंड इट टेल्स यू हाउ। आपने एक आर्टिकल लिख दिया कि भाई उबर कैसे बुक करना, बता देगा, आप यहाँ जाइए, ये करिए, वो करिए, रूल बेस्ड जैसा हो गया, राइट? बट जनरेट वो भी कर रहा है कि ये करना है, ये करना है। तो जेन एआई जैसा ही है वो, बट रूल बेस्ड टाइप का जेन एआई, ठीक है। विथ लेस से थोड़ा सा मॉडल है उसमें, या नहीं भी हो सकता है, सिर्फ प्योरली लिखित है उसमें, आपने लिखा है वही बता रहा है। बट एआई एजेंट से आप बोलेंगे तो इट ओपन्स द ऐप, पिक्स द राइट, बुक्स इट फॉर यू, एंड इट कैन टेक एक्शंस लाइक सर्च, क्लिक, फिल, सेंड, सब। यानी वो ह्यूमन जैसा ही काम कर रहा है, यानी वो बुक करके दे देगा आपको, बताएगा नहीं। समझ में आया क्या फर्क आ रहा है? तो स्मार्ट इंटर्न जैसा है कि चैटबॉट फ्रेंड है जो एडवाइस देता है कि हाँ भाई कैसे हो, हाँ हाँ बढ़िया है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जो एजेंट है वो करके देता है कि ये लो भाई, ये यही है, या करके दे देगा, हो गया लो, ठीक है। तो क्लॉड की बात करें तो क्लॉड कोड, क्लॉड कोवर्क, है ना, जो कि प्रो सब्सक्रिप्शन में जो मैं यूज करता हूँ, आगे वाले सेशंस में मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो उसमें वो चीजें करके दे देता है आपको, तो उसमें एजेंट ही काम करता है, ना कि सिर्फ एक एक तरह से एआई, जेन एआई। जेन एआई एजेंट वाला जेन एआई, आप ऐसे समझिए। तो जेन एआई सिर्फ जनरेट कर रहा था, एजेंट क्या कर रहा है, काम करके दे दे रहा है आपको, ठीक है। तो अब हम और ऊपर बढ़ रहे हैं, जेन एआई तक तो सही था, जो कि चैटबॉट था, लेट से, है ना। अच्छे चैटबॉट भी हो सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी भी चैटबॉट जैसा है ना, लेकिन वो बहुत बड़ा है, जैसे चैटबॉट नहीं बोलना चाहिए। चैटबॉट मेंट की सिर्फ इतने ही पर्टिकुलर, जैसे एयरटेल का चैटबॉट, स्विगी का चैटबॉट, उसका तो इतना ही होगा, ठीक है। और क्योंकि उनका खुद का एलएलएम तो है नहीं, वो यूज बाहर का ही कर रहे हैं, या हो सकता है रूल अभी भी लगा रहे हो, तो आप बहुत स्मार्ट रूल भी लगा सकते हो। इतने अच्छे स्मार्ट रूल्स लगा दो कि वो ऐसा एआई जैसा लगे, तो लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है। कंपनी थी हाल ही में, नाम भूल गया हूं मैं, वो बोलती थी कि वो वेबसाइट बिल्ड करते हैं एआई से, बट एक्चुअली में
उन्होंने हायरिंग की थी सस्ते लोगों से और वो काम करते थे पीछे, तो वो कंपनी बैन हो गई क्योंकि उसने गलत फॉल्स प्रोमिस किए कस्टमर से। ठीक है, तो हाँ रूल्स इतने अच्छे भी हो सकते हैं कि वो एआई लगे, बट हर चीज एआई जरूरी नहीं है कि हो। ठीक, तो रियल एआई चैट जीपीटी क्लॉड यही सब है जो हो रहा है, जो पीपीटी बना रहा है, ये रूल से नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए। आगे बढ़े। एजेंटिक एआई ये उससे भी ज्यादा अलग है। ठीक है, एजेंटिक एआई क्या है? गिव इट अ गोल एंड इट फिगर्स आउट द स्टेप, मेक्स चॉइसेस एंड गेट इट्स डन। सब कुछ करके वो आपको दे देगा। एक यहाँ पे मैं शायद ज्यादा बोल गया था पीछे, एआई एजेंट्स जो आप हैं वो इंटर्न है, जस्ट हैंडल इट फॉर यू एंड दे कैन गो एंड डू द स्टेप्स फॉर यू। तो उसने सारे स्टेप आपके लिए किए है ना, रिजल्ट नहीं दिया है, स्टेप्स किए हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है? गोल दिया, जैसे आपने प्लान माई गोवा ट्रिप अंडर 20 के, उसने स्टेप में ब्रेक किया। ठीक है, वो वहां तक था। उसके बाद डिसीजन बना रहा है, कंपेयर कर रहा है इधर के प्राइसेस उधर के प्राइसेस, और सबसे बेस्ट जो आपके पैटर्न से उसको पता चला है, फिर वो जाके वहां पे आइटनरी देता है और शायद वो बुक भी कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो बेसिक फर्क क्या है एआई एजेंट्स में और एजेंटिक एआई में? कि एआई एजेंट्स जो हैं आपके लिए सारे वो स्टेप करते हैं। ठीक है, सर्च क्लिक फिल सेंड ये सब कुछ कर दिया। ठीक है, और सॉरी कहाँ चला गया मैं। और एजेंटिक एआई क्या है कि वो एक एक तरह से बहुत सारे एजेंट्स आप बोल सकते हो कि एक साथ लगे होते हैं, कि फ्लाइट चेक किया, होटल चेक किया। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? क्योंकि प्लान में गोवा बोल रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि उबर कर दो, आप कह रहे हो कि गोवा ट्रिप मेरे को करनी है अंडर 20 के। तो कितनी सारी चीजें हैं, तो कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे। तो फ्लाइट, होटल, वेदर, इतनी कुछ सारे अलग अलग एजेंट्स काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो आपको एक डिसीजन बना के बेस्ट दे रहे हैं। हो सकता है वो बोल दे कि अच्छा मौसम नहीं है, या हो सकता है बोल से 20,000 के अंदर नहीं हो पाएगा, या हो सकता है हो पाएगा लेकिन ये होटल्स हैं। तो जो भी सिनेरियो बनता है वो आपके लिए देते हैं। ठीक है, तो एजेंटिक एआई को आप कह सकते हो कि कई सारे जब एआई एजेंट्स मिल जा रहे हैं तो वो एजेंटिक एआई बन जा रहा है। और एआई एजेंट एक ही है कि जब आपने कहा कि उबर बुक कर दो तो वो बुक कर दे रहा है आपके लिए, सारे स्टेप्स दे के बुक कर दिया। ठीक है, तो एआई एजेंट्स का एडवांस वर्जन है एजेंटिक एआई, ऐसा हम समझ सकते हैं इसको, जहाँ पे मल्टीपल एआई एजेंट्स एक साथ काम कर रहे हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें प्लीज पूछिए। सर ये जो डेटा मिलता है लोगों को, हम्म जैसे हम्म गोवा ट्रिप की 20,000 रुपीज अंडर, और ये हम्म प्राइस होगा, ये होगा, हम्म। तो वो डाटा लोकल्स देते हैं, तो डेटा कैसे मिलता है हम लोगों को? मतलब स्क्रैप करते हैं, वेब स्क्रैपिंग। तो जो भी डेटा आप बाहर है, सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, विकीपीडिया पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप इमेजिन करो, इंटरनेट तो बहुत बड़ा है, कहीं ना कुछ तो होगा ही, है ना? तो सारा जो डेटा ट्रेन हुआ है वहां से ये चीजों को लेता है और समझता है। ठीक है, आप अपने लिए मत सोचो, आप पूरे दुनिया के लिए सोचो, कितनी बड़ी दुनिया है, वहां का डेटा आ रहा है उसके पास। ठीक है, तो हाँ अगर डेटा ही नहीं हो कोई भी, लेट्स से एकदम कोई नई बात हो रही हो, एकदम डेटा ही ना हो उसका, तो नहीं बोल पाएगा आपसे एआई सही चीजें। ठीक है, जो कि होता भी था 2022 में, मुझे याद है पहले जो डेटा था वो 2021 तक ही ट्रेन हुआ था। तो अगर मैं करंट अफेयर पूछता था नया, आज क्या चल रहा है, तो कहता था नहीं यार मैं ट्रेन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्या आप लोगों ने कभी ये महसूस किया था पहले? कि आई बोले कि मुझे नहीं पता है ये? बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल पहले की। ये शायद आपने ना यूज किया हो, नॉट श्योर। यस नो? ठीक है, बट ऐसा हुआ था है ना, क्योंकि मैंने यूज किया था। तो बेसिकली ट्रेनिंग जब तक होती है, ठीक है, इसीलिए अब आया एक फीचर वेब सर्च वाला, पहले वेब सर्च नहीं था। पहले सिर्फ मॉडल जितना ट्रेन हुआ था 2021 तक उसी पे बात होती थी। ये कोविड के दौरान की बात है, कोविड के बाद ही ये सब चीजें आई थी। ठीक है, होप इट आंसर्स जिन्होंने पूछा था। यस। तो इंटरनेट इज द सोर्स, विल एआई टेक माई जॉब? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि एआई जॉब ले लेगा क्या? तो लेट्स आंसर दिस। ठीक है, तो इसके दो आंसर्स हैं। हाँ ले लेगा अगर आप एआई नहीं सीखोगे या पुरानी चीजों पे रहोगे तो, और नहीं लेगा अगर आप एआई सीख जाओ तो जॉब उसकी लेगा जो एआई नहीं जानता है, और उसकी नहीं लेगा जो एआई जानता है। तो इसलिए वो बनिए जिसको एआई आती है। क्योंकि खुद इमेजिन करिए, जब आपके पास चॉइस होगी, लेट से आप
कंपनी के मालिक हैं या कोई भी है, आप एक मैनेजर है या कोई भी एक नॉर्मल है, आप इमेजिन करिए 2 लोग हैं आपके पास, एक है जो मैनुअली काम करेगा 8 घंटे में और एक है जो एआई की मदद से उसी काम को 2 घंटे में कर देगा, आप किसको हायर करेंगे? दोनों अगर सेम पैसे ले रहे हैं तो 2 घंटे वाले को, राइट? कोई इसमें डाउट नहीं है। हाँ, अगर कम पैसे की बात हो और घंटे आपके मायने ना रखते हो, तब शायद आप 8 घंटे वाले कहोगे नहीं मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगा, अगर 5,000 में रेडी हो तो ही करो, लेकिन 8 घंटे में वो देगा। बट फिर आपको भी सेंस बनाना पड़ेगा कि 2 घंटे वर्सेस 8 घंटे, 4 गुने का फर्क है पैसे में, यहाँ 2 गुने का फर्क है, क्या करूं मैं, राइट? या तो 4 गुना अगर समय लग रहा है तो 4 गुना कम पैसा दीजिए। तो रेशियो आपको डिसाइड करना है। बट एआई की बात कर, कंपनीज की बात करें तो वो हमेशा समय बचाना चाहेंगे, क्योंकि टाइम इज मनी। क्योंकि हम कोई चीज 10 साल में नहीं अचीव करना चाहेंगे, हम 1 साल में अचीव करना चाहेंगे। इसलिए हमें अच्छे लोग चाहिए जो एआई को जाने और जल्दी करें काम को। ठीक है, यस प्लीज आस्क। So Shashank, using the agent or prompting is enough, or we should learn like coding in AI means LLM and all. सी वी डोंट हैव टू लर्न कोडिंग और लर्न हाउ एलएलएम वर्क्स, है ना, कि वो बहुत आगे की बात हो गई, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। बट मैं कहूँगा टूल्स को यूज करना आना चाहिए, जैसे चैट जीपीटी बेस्ट तरीके से यूज करना आना चाहिए, सिर्फ खोल के बोल देने से नहीं, उसको और अच्छे से सेटअप करना कि वो आप जैसी बात करे। आपने जो भी मैसेजेस देखे होंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो एआई से ही मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं पूरे प्रॉम्प्ट्स नहीं देता हूँ, क्योंकि वो समझ चुका है कि संडे विद शशांक क्या है, उसको मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, क्या करने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ। ये सारी चीजें धीरे धीरे हम समझेंगे कि हाउ टू यूज, है ना, जेन एआई टूल्स एफिशिएंटली एंड विथ मोस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो सिर्फ टूल पे फोकस, बाकी अंदर की बात अभी नहीं जाननी है। अंदर की बात के लिए धीरे धीरे आप समझते रहिए, बट डजंट मैटर। अब आज के दिन कोई ये कहे कि नहीं हाउ चिप वर्क्स, है ना, या ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसका कोई सेंस नहीं है। अच्छी बात है अगर आप जानना चाहें, बट कोई सेंस नहीं है कि वो री इन्वेंटिंग द व्हील आप करें एंड उसके बाद आप यहाँ पहुंचे, तब तक जमाना बहुत आगे निकल चुका होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये शुरू किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं भी शायद पीछे हो रहा हूँ, है ना। ट्रस्ट मी, मैं पीछे हो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें बढ़ रही हैं, मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकता, ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमन, और ह्यूमन को सरपास एआई कर चुका है और करता जाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो आए, है ना। तो होप इट आंसर्स। Yes, Shashank. Okay. So AI won't replace you, but a person using AI might. What AI is great at? Repetitive, boring task, है ना। जैसे पीपीटी बनाना मेरे को बोरिंग लगता है, पहले अच्छा लगता था, बट अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है क्या लिखना है लेकिन सुंदर नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे फॉन्ट, कलर, चीजों को ऐसे वैसे करना, ये सब करना पड़ रहा है। आप इमेजिन करिए इसमें कितना टाइम लगेगा आपको। सिर्फ इस स्लाइड की बात करूं, अगर मैं कंटेंट दे दूं आपको, जो कि चैट जीपीटी दे देता है, आपको कितना टाइम लगेगा ये बनाने में? जल्दी बताइए, कितने मिनट लगाओगे आप एग्जैक्टली ऐसा बनाने के लिए? हम्म, कितना टाइम लगेगा ये स्लाइड बनाने में आपको? With the help of AI or manually? नहीं, खुद से। मैं आपको टेक्स्ट सब दे दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, डायग्राम दे दे रहा हूँ, फोटो दे दे रहा हूँ कि इस तरह दिखना चाहिए, आपको बस एग्जीक्यूट करना है, बनाना है पीपीटी में। Depends, might be more than an hours. हाँ, तो डिपेंड्स। क्यों? क्योंकि हम लोग फास्ट नहीं कर पाएंगे इतना, है ना। यहीं पे एआई बीट कर देता है हमें। तो क्यों हमें डरना क्यों है? हम एआई यूज कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं, एआई को असिस्टेंट जैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये पीपीटी बनाने में 10 घंटे लग रहे होते, तो मैं फिर पढ़ूं कब, अपना काम कब करूं, जॉब कब करूं, राइट। तो यही है, यही एग्जाम्पल है जो आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें मुमकिन है। इट जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए वो कैसे यूज करना है, प्रॉम्प्टिंग कैसी करनी है। इसीलिए संडे विशेषांक है, दैट्स इट। ठीक है, एंड व्हाट स्टेज योर्स? जजमेंट एंड कॉमन सेंस। जजमेंट आप ही है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वो तो वही बोलेगा जो उसको लग रहा है। मैं बोलूंगा यूजिंग एआई को ब्लू करो, कलर ऐसा रहना चाहिए, नीचे संडे विशेषांक एपिसोड 01 लिखो, पेज नंबर डालो, है ना। कॉमन सेंस आप लगाएंगे। एम्पैथी एंड रियल रिलेशनशिप, हम आपसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप नहीं बनाएगा चैट जीपीटी, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, है ना, और ना में ना भी कर देगा, बट सही गाइडेंस जरूरी नहीं है कि वो दे। इसलिए इट्स नॉट एन एक्सपर्ट, करियर काउंसलर और कोच ये सब नहीं है वो। लोग सोचते हैं बट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, यू कैन टेक कि सजेशन वो क्या आप कह रहा है, लेकिन आपको जब तक खुद की रिलेशनशिप्स और खुद की जजमेंट नहीं होगी, इट इज ऑफ नो यूज। सो वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट फुली ऑन चैट जीपीटी और एनी
जेन एआई टूल्स, ठीक है। और आस्किंग द राइट क्वेश्चन, गलती सवाल करोगे तो गलती जवाब आएगा, सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है। तो आस्किंग द राइट क्वेश्चन आपके हक में है। आप एग्जैक्टली पूछो कि क्या चाहिए, क्या गोल, क्या है, करना क्या है। आप बोलोगे हाउ टू बी रिच, इमेजिन करो कितना वेग है ना, या हाउ टू बी हैप्पी, कितना वेग है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहिए। कोई भी चीज पूछना है तो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पर्टिकुलर रहना पड़ेगा। तो आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज द की। वहीं से आ जाती है प्रॉम्प्टिंग, कि प्रॉम्प्टिंग में क्या लिखूं कि वो बेस्ट दे, सेटअप कैसे बनाऊं कि वो बेस्ट आंसर दे, रिस्पॉन्स करे, ताकि मैं अगली बार जब पूछूं तो उसको पिछला वाला तो याद रहे, स्टाइल भी याद रहे, सब कुछ याद रहे। अब मैं ये पीपीटी बना चुका हूं तो मैं उसको अगर डाल दूंगा और बोल दूंगा जैसे बनाया था एकदम इसी डिजाइन का बनाना, बस टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। एपिसोड 2 के लिए, नेक्स्ट संडे के लिए मैं चाहूंगा कि क्लॉट की तरफ तुम फोकस करो, या एआई टूल्स को बेस्ट कैसे यूज करते हैं ये करो, वो दे देगा। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा रिव्यू करूंगा और चीजों को ठीक करूंगा। और पीपीटी में भी क्लॉड आ चुका है तो वो भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। वी आर आउट ऑफ टाइम, तो बस मैं रैप अप करने चाहूंगा थोड़ी देर में। हाउ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस एआई, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो कोई भी कॉमन क्वेश्चन होते हैं आजकल, आपको भी कॉल्स आते होंगे सपोर्ट के, तो आप बोलता होगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, क्या आप एक दबाएं या दो दबाएं, तो वो अब एआई से हो रहा है। आदमी कॉल नहीं कर रहा है आपको, बल्कि एक ऑटोमेटेड वॉइस आ रही है, जो कि आपका इंटरेस्ट है तो पता चल जा रहा है, उसका समय बच रहा है, वो फालतू लोगों पे कॉल नहीं करेगा। एआई से कॉल हुआ, अगर इंटरेस्टेड हो तो असली आदमी आपको कॉल करता है। होता है सबके साथ, या मैं ही हूँ? Yes. नहीं होता होता है, होता है। ठीक। मार्केटिंग ऑब्वियसली, अभी मैंने पोस्टर बनाया जो भी व्हाट्सएप पे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, सबका मैं हेल्प ले रहा हूँ एआई का, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स वो धीरे धीरे जब हम बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशंस वो बहुत सारे हो सकते हैं, कंपनीज में ऑपरेशंस ही होते हैं, फॉर्म्स को ऑटोमेट करना, रिपोर्ट्स, रिपीटेटिव वर्क वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एवरी वन ऑफ दिस आस्क फॉर एआई स्किल्स, तो सब चीज़ों में एआई स्किल है। तो मार्केटिंग पसंद है, गो फॉर इट। डेटा एनालिटिक्स पसंद है, गो फॉर दैट, आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू। कस्टमर सपोर्ट के लिए गो फॉर दैट। ऑपरेशंस में कुछ अच्छा करना है, गो फॉर दैट। तो जहां पे भी आपको लगता है आप उसमें घुसो, एआई से उस चीज को बेटर करो एंड अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए, ठीक है। हाउ टू लर्न एआई, जो सबका सवाल था, यूज इट डेली, सबसे पहला पॉइंट। रोज यूज करिए, रोज मतलब रोज, कभी भी छूटना नहीं चाहिए। और अच्छी चीज यूज करिए, उसमें हमेशा कुछ अच्छी चीज जानिए जो भी आपके दिमाग में है। लर्न टू आस्क कि भाई असली प्रॉम्प्ट कैसे बोलूं, आप उससे पूछो कि मैं तुमको किस तरह से पूछूं कि तुम अच्छा बताओगे, वो भी उल्टा प्रॉम्प्ट भी बता देगा आपको, ठीक है। तो आप बताओ कि ये ऐसा चाहिए तो क्या मैं पूछूं, बता देगा। और विद टाइम आप सीख जाते हो, जैसे हमने एबीसीडी सीखी है, एक्टिव पैसिव वॉइस सीखी है, बात करना सीखा है, अचानक से कॉमन सेंस लगाना सीखा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड सीखा है, ऐसी प्रॉम्प्टिंग भी डीएनए में आ चुका होगा आने वाले समय में। बट हम लोग वो वाली अभी पीढ़ी है जो अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, और बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए मैं हूँ, इसीलिए संडे विद शशांक, ओके। ऑलवेज चेक कि भाई सही बोल रहा है कि नहीं। आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सब कुछ मैंने रिव्यू किया है कि कहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे मुझे लगता है कि सही है, कहाँ पे लगता है कि नहीं सही है। इसलिए और भी लोगों का हेल्प लिया मैंने, और चैट जीपीटी से भी हेल्प लिया है, क्लॉट से भी लिया है, आपस में लड़ाया है उन लोगों को, ताकि मेक श्योर हो कि सच सारी चीज़ें अच्छी हों, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वगैरह वगैरह। बट फिर भी अगर होती हैं तो आई कैन ट्वीक दैट, ठीक है। बिल्ड समथिंग, ये फोर्थ लास्ट स्टेप है, बट शुरुआत करिए कि छोटी छोटी चीज़ें, कि मैं कैसे रिज्यूमे बनाऊं, है ना। ये रिज्यूमे बिल्डर बनाइए, मैं बना रहा हूँ उस पर, धीरे धीरे मैं आऊँगा उस पर, जिसमें आप रिज्यूमे डालेंगे, आपको वो रिव्यू करेगा, आप टेम्पलेट चूज करेंगे, आपके लिए एक नया रिज्यूमे आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो क्लॉड से ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं जल्दी कुछ समय में शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। फ्री टूल्स, तो पोल टाइम है आपका, बताइए कि आप क्या यूज करते हैं ऑन योर मोबाइल स्क्रीन नाउ। विच एआई टूल डू यू रीच फॉर मोस्ट ऑन योर Chat मोबाइल? GPT, Google Gemini. ऑन योर मोबाइल प्लीज वोट करिए। क्लॉड, नाइस। और लोग क्या क्या यूज करते हैं? चैट जीपीटी करते हैं, 50-50 हो गया। बाकी सभी रिस्पॉन्स करें। ठीक है, तो को पायलट लोग नहीं यूज कर रहे हैं, जेमिनाई ज्यादा नहीं यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, नाइस, है ना। मैं भी बोलूँ तो क्लॉड फर्स्ट पे है मेरे लिए फिलहाल, चैट जीपीटी सेकंड है, जेमिनाई मैं सिर्फ ईमेल के लिए कभी कभी यूज करता हूँ, और को पायलट मैं कंपनी में यूज करता हूँ। तो करता मैं सब हूँ, बट ये प्रायोरिटी मैंने बता दी, ठीक है। तो दैट्स ग्रेट, है ना, टू ईयर। आखिरी है, कुछ स्लाइड्स खत्म करेंगे। तो
प्लीज शुरू करिए, है ना। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, क्लॉड, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, परप्लेक्सिटी भी रियल लिंक्स के लिए बहुत अच्छा है रेफरेंस लेने के लिए, और कैनवा भी बहुत अच्छा डिजाइन करने के लिए, और सब कुछ फ्री है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। अगर लिमिट की बात ना करें तो आप शुरुआत करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। 3 स्मॉल स्टेप्स लीजिए, ओपन 1 टूल, गिव इट 1 रियल टास्क, शेयर इट विद अस। तो ग्रुप में आप बताइए कि आपने क्या किया, ठीक है। तो इस हफ्ते आप बीच में यूज करिए कुछ प्रोडक्टिव के लिए, कि क्या मैं करना चाहता हूँ, वो आपका टास्क हो सकता है। सिंपल एक लाइनर में बताइए, इन 1 वर्ड बताइए, हाउ डू यू फील अबाउट एआई नाउ, इस सेशन के बाद, ऑन योर मोबाइल प्लीज। इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 1 वर्ड टू डिस्क्राइब टू। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? सॉरी, Yes, Shashank. प्लीज अपने उस पे जाएं और मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक। सेव टाइम, ओके, बिकॉज इट्स एनोनिमस, सो नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ रैंडम नाम मैंने यही से बोला था देने के लिए। ब्रीजी शार्क, सेव टाइम, बाकी सभी बताएं। सनी यूनिकॉर्न, अनस्किल्ड, ओके, और बताइए। भाई सभी लोग भी इस पे अपना रिस्पॉन्स दें। आई थिंक वी हैव 4 पीपल विद अस। Sure, I think it's good, है ना। And that's it from my perspective. So thank you for showing up. Next Sunday फिर मिलते हैं, हम लोग समझेंगे writing your first great AI prompt live. And till then, see you then. Take care. Thanks for joining again. And recordings वगैरह मैं आपको ग्रुप पे अपडेट करूंगा. And please feel free to reach out anytime. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank you. Thank you. Thank you, sir.